Hello everybody and welcome to my channel, The Star in Your Child. If you want sustainable results from a gifted child, a star child, this channel is for you to get all the encouragement and tips. You are not alone. Along with you are a million others, and we together will rock it! So guys, today's topic is the coffee meet. Today I am with my star moms, the family that we belong into. We work hard each day, we toil our way up with our child. We do more than we can imagine we could have ever done. And still we put up a great smile, we spread happiness and joy. And today's topic, we are going to have a sneak peek into the day of their life. Okay, so these are my star moms. She's Kalpa, she's Reena, and she's Pragya. We all have star kids, and let us know how they go about with their child. So Kalpa, let me ask you, how was it and when was it that you got to know that you were blessed with a star kid? I came to know from the day one when I gave the birth to my child. Oh, okay. You, Reena? After 1.5 years. After 1.5 years, and why? When he was working late to... Okay, so he had delayed milestones. Delayed Delayed milestones. okay. And Pragya? Yeah, same with Reena. When my daughter was 8 or 9 months. Okay. You got to know about it. Alright. So what followed next? What you did once you got to know that? I started with physiotherapy. Okay. But there was no support from my family, so I could not start with occupational therapy or a speech therapy. Oh, that's sad. Family support is so important in these cases. Definitely. In my case, my family support was super. Oh, great. इतना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, हर जगह मेरे साथ चले. मेरे मदर इन लॉ लाइक मॉर्निंग 7 o'clock टू इवनिंग 4 o'clock. वो हमेशा मेरे साथ रही है हर जगह. भाईंदर टू महालक्ष्मी इज not easy and full day for therapy. And my father-in-law, he literally managed lunch for us when we came back. Okay. So family support is main thing. Yes. And how about you? In my case, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी को cerebral palsy है, mild cerebral palsy and heavy ADHD. Okay. My mother-in-law was a nurse. ओके. तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला उनका. तो पहले मुझे उन्होंने सबसे पहली बात ये बताई कि ये 10 महीने की हो गई है, चल नहीं रही है, पलटी नहीं मार रही है, फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं. तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले भी हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए. ओके. उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गए, फिर हमें पता चला कि हाँ ये इट्स सेरिब्रल पाल्सी. ओके. तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. दैट इज वेरी नाइस. तो वो सब 3-4 साल तक ऑलमोस्ट मैंने कंटिन्यू रखा था. फिर ऑलमोस्ट व्हेन शी वाज 3.5 years, तब पहली बार वो खुद उठ के खड़ी हो गई अपने पैरों पे. That's really nice. वो दिन मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ. बिल्कुल. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मेरे केस में मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट हमेशा से रहा है. They have always told me कि भैया तू जा, बच्ची को देख, बाकी सब बाद में, हम यहाँ पे तेरे पीछे खड़े हैं. And it is so overwhelming to know that your family is there for you to support you in anything you do. That's really और nice. मुझे लगता है भक्ति सिर्फ सपोर्ट की ही बात नहीं है, एक्सेप्टेशन भी होना That चाहिए is कि चाइल्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए. जो भी आपके बच्चों में प्रॉब्लम है वो आपको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है. व्हाटएवर, छोटा हो या बड़ा हो, वो एक्सेप्ट करना चाहिए आपको. तो 50% आपका काम आसान हो जाता है उसमें. एक्सेप्टेशन जरूरी है, लेकिन इतना भी एक्सेप्ट मत करो कि आप बार बार बच्चों को ये बोलो कि अरे हमारे जैसा होता तो क्या प्रॉब्लम होता. ये इतना एक्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए. That's right. That's right. वी ऑलवेज कीप ट्राइंग टू उन्हें आगे स्टेप Yes, पे we लेके want to जाना take कि वो them one नॉर्मल step हो higher. सके. Correct. One step higher is always our aim. पहली बात तो बच्चों को ये एक्सेप्ट कराना सीखना चाहिए उन्होंने. फिर उसके बाद हम लोग जैसे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उनका बढ़ जाता है, तो फिर हम उनको बोल सकते कि नहीं आप दूसरे बच्चों से थोड़े अलग हो, लेकिन वैसे ही कर सकते हो, आप भी ये कर सकते हो. तो सपोर्ट मिल सकता है. आपको कौन से ऐसे क्वेश्चंस मिले रिलेटिव से, या कभी कभी अजनबी भी आपके सामने आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं अपने बच्चों के बारे में,
कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई रीजन नहीं होता है उनके पास। मुझे लगता है ये अपने बच्चों के बारे में ही, लेकिन नॉर्मल बच्चों के बारे में भी ये होता है। जब हम लोग सफर करते हैं, हम लोग तो वी आर स्टेइंग एट कल्याण, तो हम लोग उधर से, मैं वाडिया हॉस्पिटल जाती थी या फिजियोथेरेपी के लिए कहीं अंधेरी, गोरेगांव, हर जगह मैं कल्याण से जाती थी। तो जैसे ADHD डिटेक्ट हुआ तो कभी कभी अननेसेसरीली वो बहुत हाइपर हो जाती थी। हमें पता है कि वो क्यों चिढ़ रही है, क्यों रो रही है, और आजू बाजू वाले वो लोग मतलब ऐसे ही देखे कि अरे क्या बच्ची को संभालना नहीं आ रहा है, एक लगा के दो उसको चुप बैठेगी। सो अभी हमको ये बताओ कि फ्रॉम वेयर डू यू गेट द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू द डे? पूरे दिन में हम हंस के हिम्मत में रहते हैं, तो वो ताकत आपको कहाँ से मिलती है? I get the strength from my child because every 5 minutes he comes and tells me you're the world's best mom and I love you so much. When you're not in my life, I'm going to die. Oh, that's so sweet. That's the strength every child should give the mother and every mother should give the child. That bond is ultimate, super special. And you? मेरे केस में एवरी मॉर्निंग मेरे सन के उठते ही सबसे पहले मेरे पास आएगा, मुझे हग करेगा, किस देगा, आई लव यू मम्मा बोलेगा, उसके बाद ही उसका दिन स्टार्ट होता है और मेरा भी। तो आपको तो फुल ऑन एनर्जी मिल गया, फुल्ली चार्ज्ड। आपको प्रज्ञा? मुझे भी ऐसे होता है, जब भी मेरी बेटी उठती तो उठते वो इतना अच्छा स्माइल करती है, बहुत बचपन से। मेरे हस्बैंड मतलब बचपन में जो वो स्माइल करती थी, 3-4 महीने की थी, तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही उसको देख के बोलते थे अरे जान छिड़क दो इसकी, इस हंसी के ऊपर। तो वो उसका स्माइल आज भी कंटिन्यू है जैसे। और बहुत अच्छी बात है उसकी कि वो, बहुत सारे बच्चे नींद से उठते तो रोते हैं, लेकिन हंस के उठती है, पता नहीं क्या सपना देखती है, क्या करती है, हंस के ही बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी हंसी देख के बहुत अच्छा लगता है कि चलो। और मैं थोड़ा ये सोचती हूँ कि मैं किसी और बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन नहीं करती हूँ, मैं कल के साथ उसका आज का कंपैरिजन करती हूँ। कल वो कैसी थी, कल उसने क्या किया, आज वो क्या किया, आज क्या कर रही है। तो किसी और के साथ कंपैरिजन करने में कोई पॉइंट है ही नहीं बिल्कुल। वो बच्चों के साथ भी नहीं और अपने खुद के साथ भी हमको नहीं करना चाहिए। हमको अपने आप से तुलना करनी चाहिए। वी शुड कंपेयर आवरसेल्व्स विद आवरसेल्व्स एंड नॉट विद एनीबॉडी एल्स। आपको एट द एंड ऑफ द डे आपके बच्चों से या अपने आप से क्या चाहिए? I have no expectations, not from my child, not from myself, because I am always thankful to God. Thanks for giving me such a wonderful day. Thank you. That's so superb. That's a very wonderful thought. Everybody should be grateful and have lots of gratitude for what you have in the day. And for you, Reena? Same, no expectations. बस जो हम कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखे, उतना ही एक्सपेक्टेशन है, उससे ज्यादा। हम इतना मेहनत करते हैं कि हमको चाहिए कि हाँ अपना मेहनत सफल हो, भले 1%, बट कहीं ना कहीं दिखे कि हमने कुछ किया है। 1% भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। Okay, so now I want to know what are the 5 checklist of 5 things that you want from your child to be done every day. उसके बिना आप अपने बच्चे को या खुद को नहीं छोड़ते। मुझे ऐसा लगता है भक्ति, मेरे बारे में शरदिनी का जो प्रॉब्लम है कि एक तो बहुत हाइपर है, तो वो डे बाय डे मुझे ऐसा लगता है कि वो कम होना चाहिए। उसके लिए मैं बहुत एफर्ट्स ले रही हूँ, क्योंकि जो हाइपर बच्चे रहते हैं उनको हर वक्त उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज की जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि नॉर्मली बच्चों को थोड़े मैनर्स नहीं समझते जल्दी, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत शर्माते हैं। तो मेरी बेटी बिल्कुल नहीं शर्माती है, तो वो एक अच्छा लगता है मुझे जो चेंज आया है उसमें, कि जब भी मेरे कोई दोस्त मिलेंगे, कोई सीनियर मिलेंगे, तो जैसे मैं उनको हेलो सर, नमस्ते सर बोलती हूँ, तो वो भी वैसे ही रिएक्ट होती है। और दूसरी बात, हमारे मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक दूसरे को, जो हम फैमिली फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर्स मिले थे। तो एक दिन जब स्कूल में कुछ फंक्शन एग्जीबिशन वगैरह था, तो शरदिनी के कुछ दोस्त, उसकी मम्मी वगैरह पहली बार हम लोग मिल रहे थे शायद, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस करके दिया, शी इज माई मॉम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो चल रहा है उसके दिमाग में, तो वो मुझे और बढ़ाना है। करेक्ट। पढ़ाई वगैरह तो होता रहेगा, वो तो करना ही है, आना ही चाहिए, वो तो आने वाला ही है।
तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, लेकिन जो बेसिक मैनर्स है और जिंदगी में स्ट्रांगली खड़ा होने के लिए जो करना चाहिए वो हम डे टू डे उनके साथ, उसके बारे में हम वापस आएंगे। रीना, 5 चेकलिस्ट दैट यू वांट कि आपके बच्चे में या खुद में होना चाहिए, यू कीप चेकिंग पूरे दिन में। Please Devam, wash your hands. Please Devam, wash your hands. Then please eat slowly, chew and eat slowly, daily. Then when I go somewhere, please Devam, कहीं पे भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। प्लीज उधर मस्ती मत करना, ज्यादा बातें मत करना। इतना फ्रेंडली नेचर है उसका, 1 सेकंड में फ्रेंड्स बनाता है, तो प्लीज सोच समझ के बोलना, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। We need to prepare our child before taking them out. बहुत सारे चेकलिस्ट हमको लिख के उनको समझाना पड़ता है कि ये सब आपको करना है। चेकलिस्ट रोज चेंज भी हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन डेफिनेटली। You? See, my child has the problem of drooling, so every now and then, every second I have to tell, wipe your face. Other things, so I never have to teach him, because he already inbuilt looking at me, looking at other person. He had to teach me many things. Oh, that's nice. Actually, he had to teach me many things that mama, आप पहले ऐसे करते थे, अभी मेरे आने के बाद आपका ये कैसे छूट गया, आप ऐसे कैसे भूल गए। Even he corrects me in many words, many spellings, even the sentences where I'm talking. In the surrounding also, wherever I take him now, he tells me कि हम ट्रेन में जा रहे हो तो आप स्ट्रेंजर से क्यों बात कर रहे हो। So that is somehow you have put in his head so much कि उसको आज पता चल रहा है कि आज मेरी मम्मी या मेरे पापा गलत जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं तो लोकल इज मस्ट, लोकल इज अवर लाइफ लाइन। रोज हम लोग गाड़ी लेके नहीं जा सकते किधर, तो जैसे भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं बहुत सारी भीड़ होती है। बहुत बार अनजाने में किसी का धक्का लगता है हमें, और बहुत बार जानबूझ के भी लोग धक्का मारते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ वुमन, चाहे वो 4 साल की लड़की हो, 10 साल की बेटी हो, हमारे उम्र की हो, जानबूझ के लगा हुआ धक्का और गलती से लगा हुआ धक्का, इसका मतलब बच्चों को समझना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, समझना चाहिए। फिर मैंने उसको थोड़ा पलट के जवाब देने के लिए सिखाया। जब भी उसको ऐसा समझता है कि किसी ने धक्का दिया, तो मेरी बेटी मतलब अच्छे से बोलती है, देखो ना मम्मी, दिखता भी नहीं, इनको छोटे बच्चे जा रहे बाजू में से, ठीक चलना चाहिए। तो ऐसे मैंने उसको सिखाया है अभी कि किसी ने, अगर तुमको ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझ के हमें धक्का मारा, कि तो उनको पूछना चाहिए कि वो दिखता नहीं क्या आपको रास्ता नहीं चलने के लिए, सीधा चल नहीं सकते, किसी को एरोगेंसी लग सकता है, लेकिन इट्स नेसेसरी। इट इज नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड। अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है, खुद की रक्षा करना आना चाहिए। देवम के साथ ये जो बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली है, तो कभी भी कोई भी रास्ते में भी कोई चलता मिल जाएगा, हाय अंकल कैसे हो, तो उसे बार बार समझाना पड़ता है। देवम, स्ट्रेंजर्स के साथ प्लीज इतना ज्यादा बात मत करो। कहीं भी लोकल ट्रेन में जाओ या बस में जाओ या फिर रास्ते में भी चलते हो, तो देवम प्लीज, जो आपको जिनको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, प्लीज उनसे बात मत करो। करेक्ट। कोई भी आपको नहीं तो बेवकूफ बना के लेके चला जाएगा, उससे फिर यही बार बार फिर हम दूसरा देवम कहाँ से लाएंगे, ये वो, तो वो थोड़ा उस चीज को नहीं, मुझे इससे नहीं बात करनी है, ये स्ट्रेंजर है। कभी कभी हमको डर के थ्रू उनको समझाने की जरूरत होती है। We have to create little fear so that our child understand that you cannot do certain things. Especially with star kids, we have to do it all the more. And the life hacks. What are the ups, what are the downs of the star kid that he only came to know and he learned from his grandparents. Oh. We mothers, we guardians, we parents, we work hard, we toil, we deal with our star kids. They charge us up every day and they are the only ones who will bring us emotionally down as well. No one can trouble us with their weird and stupid questions. We keep telling our children the same thing over and over and over again, though it irritates people around them, even around us. At the end of the day, we want our child to lead a happy and healthy life. We want them to be headstrong
and in return, we want nothing. Kudos to all those mothers, all those grandparents, all those parents who are working hard with your star children. We loved being around with you today to share our experiences that we have with our children each day. Thank you. Thank you. Please subscribe to my channel, The Star in Your Child. Don't forget to press the bell icon so that you are notified every time I post my videos. Till then, bye-bye. Bye.